जी, so just for the recording, I'm saying again, we had done March 24 का पेपर, उसके बाद जून 21 एंड 22 दोनों वेरिएंट्स कर लिए थे P2s के, और अब हम कर रहे हैं जून 23, मई जून 24। अब इसका डाटा रिस्पॉन्स और एक क्वेश्चन आज करेंगे, कल बाकी तीन क्वेश्चंस। टर्कीज अनकन्वेंशनल वे ऑफ मैनेजिंग इट्स इकोनॉमी। मुझे कोई बच्चा बताएगा अनकन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? Hmm, unusual, unexpected, not the normal way of doing things. तो टर्की ने अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए कुछ अनऑर्थोडॉक्स, अनयूजुअल पॉलिसीज, टेक्निक्स वगैरह यूज की होंगी। The relationship between interest rates and the general price level, yani महंगाई, inflation, is one that is central to macroeconomic theory. Namely, that an increase in the rate of interest produces a reduction in the rate of inflation in an economy. Most economists agree on this relationship. Not so according to President Erdogan of Turkey, who has defined conventional economic theory, defied, in मतलब कि उसको उसका उल्टा गया है, who has defied conventional economic theory in tackling his country's fundamental economic challenges. अब पहले पैराग्राफ में उसने में क्या बताया है कि आम तौर पे इंटरेस्ट रेट और जनरल प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप हम कैसे देखते हैं कि जब भी महंगाई ज़्यादा हो इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ेगी, तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट वगैरह विदड्रॉ होंगे, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगी और हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन डाउन होगी। साथ में हॉट मनी इनफ्लोज आएंगी हमारे बैंक्स में हाई इंटरेस्ट की वजह से, तो उससे करेंसी अप्रिशिएट होगी, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते होंगे, उससे कॉस्ट पुश डाउन होगी। लेकिन तैयब एर्दोगान, इसका जो प्रेसिडेंट है टर्की का, उसने इसके अगेंस्ट बात की। उसने कहा नहीं जी, ये तरीका नहीं है। टू इकोनॉमिक चैलेंजेस स्टैंड आउट। देयर इज स्पाइरलिंग इन्फ्लेशन, बड़ी तेजी से बढ़ने वाली इन्फ्लेशन, एंड अ collapse in the external value of Turkey's currency, the lira, in the foreign exchange market. दो काम हो रहे हैं जी, इन्फ्लेशन बड़ी स्पीड से हो रही है और लिरा इनका डेप्रिशिएट हो रहा है। इन्फ्लेशन डॉटेड लाइंस में है और लिरा की डेप्रिसिएशन, यानी पहले 6 लिरा में $1 आता था, अब कोई 14 के करीब लिराज में $1 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 200% से ज्यादा डी वैल्यू हो चुका है, डिप्रिशिएट हो चुका है लिरा। सबको समझ आ गई बात जी? ओके, लेट्स मूव ऑन टू inflation and the exchange rate of Turkey, January 2020 to February 2022. In January 2022, the year on year rise in consumer prices was 48.7%. मुझे लगता है ये मैंने मॉक में दिया था किसी एक दो स्कूल्स में। अगेंस्ट 36.1% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज फॉर दिसंबर 2021। उसने कहा महंगाई का रेट जो है ईयर ऑन ईयर का जो है जनवरी में 48.7% था और दिसंबर में सिर्फ 31 से 36.1, तो महीने महीने में इतना बढ़ रहा है। Much higher food prices and transport and energy cost accounted for most of the increase. Despite the rise, the country's monetary policy committee held the short-term interest rates at 14%. उन्होंने उसको बढ़ाया नहीं है। This was the rate set in September 2021 when the MPC Monetary Policy Committee cut the rate substantially from 19%. In short, President had used his influence over the Monetary Policy Committee to reduce interest rates in an attempt to reduce the increasing rate of inflation. तो ये बहुत ही baffling सी उसकी पॉलिसी थी। उसने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया इन्फ्लेशन रोकने के लिए। Let's move on. President's unconventional approach has had a dramatic effect on the external value of lira, yani exchange rate. The rapid depreciation in the value of lira from September 2021 has had serious repercussions for Turkey's economy as Mr. Erdogan has sought to prioritize exports over currency stability. Consumer and producer confidence are low. Many who can have converted their lira deposits into US dollars or euros, fearing a collapse of banking system. तो इसकी पॉलिसी कोई इतनी कामयाब नहीं,
Despite these problems, the president remains adamant, जिद कर रहे हैं, अपनी बात को बार बार insist कर रहे हैं, that his economics is right for Turkey. Moreover, he is convinced that when exports increase and international tourists return after the COVID-19 pandemic, employment will increase and the current account deficit on the balance of payment will be reduced. If true, this unconventional approach to Turkey's economic problems will be proved to be a success. Yet to be seen, using the information provided, use the information provided to calculate the real interest rate. अब ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था. रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जिसमें से इन्फ्लेशन हम निकाल देते हैं. सो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो फेस वैल्यू है इंटरेस्ट रेट की, माइनस जितनी महंगाई हुई. अब जनवरी 22 में इस पैराग्राफ में देखें, जनवरी 22 में इस पैराग्राफ में मुझे पहले बताएं इन्फ्लेशन रेट कितना था जनवरी 22 में, फिर ढूंढें इंटरेस्ट रेट कितना था, और फिर इंटरेस्ट में से इन्फ्लेशन रेट निकालेंगे, माइनस में फिगर आएगा रियल इंटरेस्ट रेट का. यस, हाँ, 14% इंटरेस्ट रेट था, इसमें से माइनस करना है 48.7% इन्फ्लेशन रेट, तो रियल टर्म्स में -34.7 हमारा आंसर आएगा. यानी अगर हमने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, हर साल वो 34.7% उसकी वैल्यू नीचे जा रही है. ये होता है नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट. सबको समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन? डेफिनेटली. जैसे आजकल पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इज अराउंड 10% और कुछ बैंक्स इंटरेस्ट दे रहे हैं 11%, तो हमारा उन बैंक्स के हिसाब से 1% पॉजिटिव है. समझ आ गया मेरा बेटा? सबको क्लियर है? तो एक बार फिर देख लो. यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू कैलकुलेट द रियल इंटरेस्ट रेट फॉर टर्की. रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है इंटरेस्ट रेट्स माइनस इन्फ्लेशन रेट. इंटरेस्ट रेट 14% था फेब्रुवरी 22 जनवरी 22 में, और इन्फ्लेशन रेट 48.7. 14 माइनस 48.7 आंसर आएगा 34.7. साथ परसेंटेज का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, और थोड़ा बता भी दो, 2 मार्क्स हैं. आप बताएं रियल इंटरेस्ट रेट वाज नेगेटिव बाय 34.7%. सबको क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन यहां पे? दूसरा क्वेश्चन जी, एक्सप्लेन व्हाई द टर्किश लिरा डेप्रिशिएटेड फ्रॉम सितंबर 21. अब जरा देखें कहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर. नहीं, नहीं जी. लेट्स सी. हाँ, यहां पे नीचे लास्ट पैराग्राफ में देखें क्यों टर्किश लिरा रैपिडली डेप्रिशिएट हुआ है फ्रॉम सितंबर 21. तो डिमांड फॉर लिरा फेल बिकॉज पीपल कन्वर्टेड देयर करेंसी इनटू डॉलर्स एंड यूरोस. बिल्कुल ठीक है. और कोई वजह नजर आ रही है आपको? ये जो इसने इंटरेस्ट रेट 19 से 40% पे किया है, उससे क्या होगा? क्यों एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा? हाँ, हॉट मनी इनफ्लोज रुक जाएंगी, हमारे लोग अपना हॉट मनी बाहर इन्वेस्ट करेंगे, जिससे करेंसी की डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा. हमेशा किसी चीज की प्राइस हो, जैसे इंटरेस्ट रेट इज प्राइस ऑफ मनी, तो उसमें डिमांड सप्लाई अप्रोच यूज करनी है आप लोगों ने. तो दो क्वेश्चन हो गए जी, किसी बच्चे को समझ ना आया हो. Okay, consider the extent to which producers in Turkey are likely to have been affected by depreciation of the lira on the foreign exchange market from September
2021। थोड़ा सा डेटा में भी दिया हुआ है, पहले हम जनरल बात करते हैं। आयशा के अलावा मुझे कोई और बच्चा बताओ, एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट होने से एक्सपोर्टर्स पे क्या असर आता है, फिर इंपोर्टर्स पे क्या असर आता है? जी। थैंक यू। या मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ईमान ने सरा उल्टा कर दिया। वेरी गुड। कोई इशू नहीं है। करेंसी डेप्रिसिएशन मींस एक्सपोर्ट्स विल बिकम relatively cheaper on international markets, more competitive, their demand will rise. Imports will become relatively expensive, so domestic producers' demand will rise. However, domestic producers importing raw materials will experience rise in their cost. ठीक हो गया। हमने तीन कर लिए। डेटा में क्या लिखा हुआ है? इसकी रिजल्ट्स में कंज्यूमर प्रोड्यूसर कॉन्फिडेंस लो हुआ है, लोग दूसरी करेंसीज में जा रहे हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। बहरहाल अब वर्ड इज कंसिडर द एक्सटेंट टू विच, ये बच्चे इग्नोर कर जाते हैं। यहां पे वो कहते हैं किस हद तक प्रोड्यूसर्स इफेक्ट होंगे। तो क्या हम बोलते होते हैं यहां पे एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन पे कौन सा फैक्टर जो डिसाइड कराता है हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? पीईडी, यस, पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अगर जे कर्व हो चुका था, मार्शल लर्नर कंडीशन मीट हो चुकी थी, देन द टर्किश प्रोड्यूसर्स विल गेन ओवरऑल, अदरवाइज दे विल लूज, उनका करंट अकाउंट मजीद डेफिसिट में जाएगा। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? अगर किसी को, सॉरी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, प्रोड्यूसर्स कितना इंपोर्टेड मटेरियल्स पे रिटायर कर रहे हैं, आप कोई ऑफसेटिंग फैक्टर ले लें। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन इन टर्की इज सो हाई, तो शायद उनको सस्ती ना लगे बाहर वालों को चीजें। कोई ऑफसेटिंग फैक्टर ले लो, दूसरे कंट्रीज दे माइट डेप्रिशिएट देयर करेंसी मोर देन टर्की। ठीक है जी मेरे बेटे बोलें। ईमान, बस ठीक हो गया, ऑफसेटिंग फैक्टर्स यूज किया करें। अच्छा, इवन जो बच्चा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देगा 2 मार्क्स आ जाएंगे। Depreciation of Turkish lira will make exports relatively cheaper. In international markets, their demand will rise. Imports will become expensive, their demand will fall. Current account may go into surplus. But producers importing raw materials will experience rise in cost and they'll become less competitive domestically. फिर उसी तरह आगे चलें, द इफेक्ट विल डिपेंड ऑन पीडी ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इफ इट्स इनइलास्टिक, टर्की बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट विल गो फर्दर इनटू डेफिसिट। अदरवाइज अगर मार्शल अर्नर कंडीशन मेट थी तो सरप्लस में जाएगा। अलबत्ता हमने देखना है कि टर्की में इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है। कोई जरूरी नहीं कि डेप्रीसिएशन की वजह से बाहर वालों को टर्की की चीजें सस्ती लगें या हमें इंपोर्ट्स महंगी लगें। समझ आ गई बात बच्चों? ऑफसेटिंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट टू गेट द फोर्थ मार्क। एनी वन, एनी कंफ्यूजन, प्लीज एक बार आस्क मी जी। जी, मसलन आप बताएं अपना आंसर, आप अपना आंसर दें। इनफ, 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 इनफ। मैंने तो इसलिए 2 किए, 3 किए ताकि बच्चे जो पिक कर सकें। ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, देखो जैसे ही आपने एक्सपोर्टर्स पे इफेक्ट बताया 1 मार्क, इंपोर्टर्स पे इफेक्ट बताया 2 मार्क, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो इंपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल उन पे बताया 3 मार्क। फिर इवैल्यूएशन के किस हद तक इफेक्ट आएगा वो पीईडी पे डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन रेट इन टर्की एंड अदर कंट्रीज डिपेंड करता है। एक्सचेंज रेट ऑफ टर्की कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज डिपेंड करता है। समझ आ रही है? अभी चलें एक बार मार्क स्कीम देख लेते हैं ताकि हम कंफर्म कर लें। पहला क्वेश्चन जी,
-34.7 आयशा ने कैलकुलेट किया था, एंड आई बिलीव दैट वाज टोटली राइट. लेट्स गो देयर. फॉर अ करेक्ट आंसर ऑफ -34.7, 7% साइन लगाना है. खाली 34.7 लिखा या परसेंटेज साइन नहीं लगाया, 1 मार्क. ठीक है. और वो कहता है करेक्ट फॉर्मूला भी दे दो, चाहे इनकरेक्ट कैलकुलेशन हो, तब भी 1 मार्क है. तो केस स्टडी गिव्स एनुअल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइसेस 48.7, इंटरेस्ट रेट 14, 14 minus 48.7 -34, नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट. समझ आ गया मेरे बच्चों? व्हाट इज नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट? व्हेन इन्फ्लेशन रेट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट्स. G. Explain why Turkish lira depreciated in September 2021. This may include a fall in short-term interest rate. 14% पे आप लाए हो, जिसकी वजह से हॉट मनी नहीं आ रही. फिर कंज्यूमर प्रोड्यूसर का लो कॉन्फिडेंस कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने वाला है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें एज टू हाउ दिस लीड्स. जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ लिरा, रीजन विल बी फॉल इन डिमांड फॉर लिरा इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. हॉट मनी आना कम होगी, डिमांड गिरेगी, वैल्यू गिरेगी. जब भी प्राइसेस पे क्वेश्चन है, डिमांड सप्लाई को साथ में जरूर लाना है. अब वो क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे, अप टू 3 मार्क्स. फॉर एन एक्सप्लेनेशन हाउ प्रोड्यूसर्स इन टर्की मे हैव बीन अफेक्टेड बाय डेप्रिसिएशन ऑफ लीरा, e.g. price of imported raw materials will rise, 1 mark, which will lead to an increase in cost of production, 2 mark दे दिए उसने. Will lead to reduced price competitiveness of Turkey's producers, लीडिंग टू लोअर डिमांड. इसी पे उसने 3 मार्क्स दे दिए. दूसरा, इट मे रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू इन्वेस्ट because of uncertainty leading to further reductions in competitiveness. Because in fall in perceived price of export, this will increase price competitiveness, lead to increase in demand. आप दोनों एंगल से आपको 3 मार्क्स मिल रहे थे. चौथा पीईडी पे डिपेंड करेगा, रिलायंस ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करेगा. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? Alrighty, let's now go for longer questions. ये थोड़े टफ होते हैं, बट यू गाइज आर टफ, यू गाइज आर A1 स्टूडेंट्स, A2 स्टूडेंट्स, यू शुड बी एबल टू हैंडल इट. एक नज़र मार लूँ कितने बच्चे आए हैं क्लास में, और मेरी मीटिंग चल रही है. 43, दैट्स नाइस, दिस इज व्हाट आई वांट. छुट्टियां ईद की हो गई अब खत्म, बैक टू वर्क. राइट जी. सो अभी मैं सारी वीडियोस एक एक करके लगाए जा रहा हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे. उसके मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा, आप लोग देख लेना. I've sent you solutions from 23 March to 25 March. अगर बच्चों वो solutions important units के, जो मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग कर लें, तो आपका कोई वजह नहीं है कि AS में A ना आए और A2 में A स्टार ना आए, इंशाल्लाह. अब let's move on. Assess whether Mr. Erdogan's economic policy have had a beneficial impact on Turkey's economy since 2020. अब हम देखते हैं हमारे पास डेटा में क्या है. 2020 से लेके इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है. कहाँ वो 6% पे थी स्टार्ट ऑफ 20 में, और अब देखो वो कहीं 14% के करीब पहुंच गई है. नहीं, बल्कि और भी ऊपर होनी चाहिए. हाँ हाँ, 48% पे पहुंच गई है. और लिरा जो है, 6 लिरा में $1 आ रहा था, अब कोई जस्ट अंडर 14 लिराज में $1 आ रहा है, वो भी डेप्रीशिएट हुआ है. ठीक है. तो यहां से आपको क्या लग रहा है कि इसकी पॉलिसी कामयाब हुई है कि नहीं? नहीं हुई ना. इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई है. अलबत्ता व्हाट डज ही वांट कि मेरी करेंसी डेप्रीशिएट हो जाए, एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएं, इंपोर्ट्स महंगी हो जाएं. कोविड के बाद टूरिज्म जब ज्यादा आएगा, सस्ती करेंसी भी होगी, उससे मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जाएगा, मेरी इकोनॉमी बाहर निकल आएगी. अगर तो उसकी ये बात, जैसे इसमें डेटा में भी लिखा हुआ है, अगर उसकी बात ये सच साबित हुई, तो फिर तो हो सकता है कि अनकन्वेंशनल अप्रोच ठीक चले. बट फ्रॉम द एविडेंस दैट वी हैव, इट सीम्स लाइक द पॉलिसी इज फेलिंग. इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है और करेंसी डेप्रिशिएट भी हो रही है. हमारे पास कोई डेटा नहीं है अबाउट करंट अकाउंट कि वो सरप्लस में है कि डेफिसिट में है, लिहाजा वी कैन नॉट जज दैट. अलबत्ता इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकी. टूरिज्म आएगा कि नहीं, दैट ओनली टाइम विल बी टेलिंग अस. मेरे बच्चों, कोई क्वेश्चन यहाँ पे?
अब इसको कैसे करना होता है 6 मार्क्स? अम, बेटे हमें पॉलिसी के तो पता है ना, उसने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, तो हम इसको कर सकते हैं। पहले उसको जनरल थ्योरी बता दो। लोअर इंटरेस्ट रेट्स विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, reduce return on saving, people will save less, borrow more, spend more, um, firms will invest more, which will shift aggregate demand to the right, and demand pull inflation is likely to rise as shown in the data. Despite lower interest rate, inflation is not controlled, it has actually risen क्योंकि गलत पॉलिसी यूज हुई है। दूसरे नंबर पे एक्सचेंज रेट नीचे हुआ है, उसका टाइम लगेगा हमें देखने में कि क्या कोविड 19 के बाद टर्की रिकवर हुआ कि नहीं, नहीं हुआ। इसकी ये पॉलिसी गलत थी। बच्चों समझ आ रहा है या कोई कंफ्यूजन? खैर मैं आपको बताने जा रहा था कि 6 मार्क्स को कैसे। जी, 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 जी। ज़रूर बताओ, ज़रूर बताओ कि अभी शायद वो मार्शल लर्नर कंडीशन नहीं हुई, टाइम लैग नहीं हुआ। जब वो हो जाएगा तो शायद कोविड 19 से रिकवरी के बाद ये मसला हल हो जाए। अब आपने 2 मार्क्स लेने हैं फॉर द बेनिफिट्स। पहले 1 मिनट ठहर जाओ। 2 मार्क्स फॉर द बेनिफिट, 2 मार्क्स फॉर हाउ द पॉलिसी डिड नॉट वर्क, इवैल्यूएशन प्लस कंक्लूजन आपके ख्याल में क्या होगा? अब आप लोग कोई बच्चा आंसर दे दो। अब बोल दें अब्दुर्रहमान। जी बच्चे, एनीवन? नहीं, बेनिफिट्स बनाओ ना कि एक्सपोर्ट्स विल बिकम चीपर, इंपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव, इंटरेस्ट रेट आपने कम किया है मेरा बेटा, हॉट मनी इनफ्लोज आपके बैंक्स में कम आएंगी, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएटेड करेंसी से एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएंगी, इंपोर्ट्स महंगी। जब मार्शल कंडीशन मीट हो जाएगी ये सरप्लस में जा सकता है। जैसे अर्दगान कह रहा है कि देखो मेरा करंट अकाउंट भी ठीक हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये सक्सेसफुल हो सकती है, ये बेनिफिट्स हैं। लेकिन इट्स गोइंग अगेंस्ट द इकोनॉमिक नॉर्म्स। इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट नीचे होने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी मजीद बढ़ेगी। आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? मतलब एक आदमी गिर रहा था, हम उसको पुल अप करते हैं, ये पुश डाउन कर रहा है, उल्टी पॉलिसी यूज कर रहा है। समझ आ गया? नाउ लेट्स लुक एट द मार्क्स स्कीम। बेटे तैयब अर्दगान इज नोन टू बी अ वेरी जिद्दी पर्सन, ठीक है? ऑल्दो ही गॉट री इलेक्टेड एज वेल, लेकिन लोग इसके बड़े खिलाफ हो गए अब बिकॉज ऑफ his policies. Turkey is struggling right now because of his policies. वो तुम्हारे पास अब रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना? लेट्स सी analysis of possible benefits. Short term interest rates have fallen, this may lead to investment on year percentage has flattened. अच्छा उसने कहा जी 22 में थोड़ी सी सीपीआई स्लो स्पीड पे गई है, शायद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। उसने जबरदस्ती 2 बेनिफिट्स लगाए हैं। नुकसान क्या है जी? फूड, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी कॉस्ट बढ़ चुकी हैं, कंज्यूमर्स लिरा करैप्स कर गया, एक्सचेंज रेट मार्केट डाउन है, आपकी डेटा शो कर रहा है कि हर चीज महंगी हो रही है। सो एज सच फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी आपकी करेंसी डाउन है, तो इट इज नॉट अ गुड पॉलिसी। समझ आ गया मेरा बेटा? इवैल्यूएशन में हम कहेंगे टाइम विल टेल वेदर Erdogan's policy will succeed, but by the looks of it, it's unconventional and it might fail. जी, हाँ, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉल हो जाएगी। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल मैंने लिखा है, मैंने बोला है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी लेकिन उससे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? मैंने पूरा एनालिसिस साथ में कर दिया था। मैंने बोला कंपेटिटिव हो जाएँगी, जे कर्व इफेक्ट आ चुका था तो सक्सेसफुल हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? मैंने सारी बातें की। तो आपने इसी तरह करना है। ठीक हो गया? एक बार फिर करवा दूँ बच्चों या समझ आ चुका है? ओके, लेट्स डू द लास्ट वन। अब मैं चाहूँगा ज़रा अनएक्सपेक्टेड बच्चे थोड़ा-सा मुझे आंसर दें। जी?
हेलो, okay. Excluding interest rate changes, assess the alternative policies might be used to reduce Turkey's rate of inflation. अब फिस्कल से स्टार्ट करें. मुझे बताएं इन्फ्लेशन रोकने के लिए फिस्कल पॉलिसी हम किस तरह यूज करते हैं. कोई बच्चा अच्छा सा आर्ग्यूमेंट. हाँ. और यार आप लोग अगर मेरी क्लास में आते हैं तो प्लीज आइदर स्टडी और जस्ट लीव. हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला. शाबाश. एक बार ईमान दोबारा बोलो, मैं उस बच्चे के चक्कर में था. दोबारा बोलें प्लीज. फिस्कल पॉलिसी में आप क्या करोगे? हम्म. वेरी गुड, वेरी गुड. आपने थोड़ा सा बहुत अच्छा लिंक दिया. सिर्फ उनके इंजेक्शंस बोलो कि 2 इंजेक्शंस विड्रॉ हो जाएंगे. वेरी गुड. हाँ. डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाओगे मेरा बेटा. हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर सकते, इनडायरेक्ट कम कर सकते हो टू रिड्यूस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. बिल्कुल ठीक है, शाबाश. अब मेरा बेटा आगे बताओ. और हमारे पास कौन सी पॉलिसीज हैं? सप्लाई साइड पॉलिसीज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्या उसको बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. अब जरा इवैल्यूएशन पे जाओ. ये वाला बेटे, ये वाला बेटे. एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट चेंजेस. आप एक बार फिर ज्वाइन कर लें. ठीक है. अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मैंने शेयर की हुई है. आप सुन लो क्वेश्चन. एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट चेंजेस, assess what alternative policies might be used to reduce Turkey's rate of inflation. तो बच्चों ने बिल्कुल सही बताया. गवर्नमेंट कैन यूज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. हाँ, यही सुनना चाह रहा था. डिमांड पुल के लिए फिस्कल, शॉर्ट टर्म के लिए फिस्कल, लॉन्ग टर्म के लिए आप करेंगे सप्लाई साइड पॉलिसीज. क्योंकि यस, क्योंकि वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाते हैं. उससे सारे एम्स भी हासिल हो जाते हैं और इन्फ्लेशन भी ठीक हो जाती है. वेल डन मीन. मॉनिटरी, बिकॉज उसने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंजेस बोल दिया था, तो आप मनी सप्लाई यूज कर सकते हैं कि वी कैन रिड्यूस मनी सप्लाई. ठीक है. वी कैन रीवैल्यू एक्सचेंज रेट, उससे डिमांड पुल कॉस्ट पुश दोनों कम हो जाएंगी. ठीक है ना. तो मॉनेटरी पॉलिसी भी शॉर्ट रन है. ठीक है. यार इस बच्चे को मैं एक बार जरा रिमूव कर दूं बिकॉज ही इज कॉजिंग बिला वजह का पता नहीं अपनी. मैं क्या कह सकता हूँ इन बच्चों के बारे में. आप सारी दे सकते हो एनालिसिस के लिए, लेकिन इवैल्यूएट तो करना है ना आपने कि भाई सबसे अच्छी कौन सी है. शॉर्ट रन में डिमांड साइड पॉलिसीज और लॉन्ग रन में सप्लाई साइड. ठीक हो गया. अब जरा लेट्स लुक एट द आंसर. Up to 2 marks for explanation, analysis of possible effect of one alternative policy. Reduction in money supply उसने ले लिया. और tighter restrictions on bank lending, additional monetary policy. This may successfully reduce AD due to less money being available. C and I दोनों reduce होंगे, economic growth कम होगी. um, Up to 2 marks for analysis of possible effect of second policy, fiscal policy, increased taxation, reduced government spending, reduce AD. C प्लस आई जरूर इंजेक्शन की बात करना कि वो विड्रॉ होंगे और उससे इकोनॉमी की डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होगी. रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी ला सकते थे, दोनों कम होंगी. That evaluation that clearly assesses the likely advantages and disadvantages of these policies in comparison with each other against interest rate changes for a valid conclusion. इंटरेस्ट रेट तो उसने इस्तेमाल ही गलत किया. हमें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल या एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसीज करनी है. शॉर्ट रन के लिए डिमांड वाली पॉलिसीज कॉन्ट्रैक्शनरी, और लॉन्ग रन में सप्लाई साइड. क्लियर मेरे बच्चों.
अच्छा जी, कुछ बच्चे परेशान होते हैं मार्क्स स्कीम देख के, यार हमने तो और सोचा था। वो हमेशा इनकी मार्क्स स्कीम के एंड पे लिखता है ARA, एनी रीजनेबल आंसर्स। सो अगर आप रीजनेबल इकोनॉमिक थ्योरी की लाइन में आंसर्स कर रहे हो, डू नॉट वरी, यू विल इंशाल्लाह स्कोर लॉट ऑफ मार्क्स। लेट्स गो ऑन। From 2030, most new car production in the United Kingdom will be of electric car. अच्छा, पहले सॉरी, चूज करें आप सेकंड थर्ड दोनों में से कौन सा क्वेश्चन करेंगे। ओके, लेट्स वेट फॉर द अदर्स एज वेल। थर्ड वाला, ओके, एक दो बच्चे और बोल दें तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक स्मार्ट चॉइस। आई थिंक थर्ड इज अ स्मार्ट चॉइस। तो यू माशाल्लाह गाइस आर पिकिंग अप द राइट क्वेश्चंस, क्योंकि आई गेट वरीड व्हेन स्टूडेंट्स कम बैक फ्रॉम एन एग्जाम एंड टेल मी कि हमने ये क्वेश्चन चूज किया था, ऑल्दो पूरे क्वेश्चन की शक्ल नहीं पता होती, लेकिन आइडिया होता है कि क्वेश्चन क्या होगा, और बच्चों ने शायद गलत चॉइस कर ली। चलें अब इसको हम जाके व्हाई इज माय वर्ड डॉक्यूमेंट नॉट ओपनिंग, चलिए मैं फिर खोलता हूँ और इसको वहां पे लिख के हम करते हैं वही मार्क्स स्कीम के मुताबिक एक दफा, ताकि बच्चों को जरा आसानी हो जाए। असेस वेदर प्रोड्यूस, अच्छा ये तो मैंने दूसरे वाला कर दिया, चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। पहले जरा जो हमने चूज किया है उस क्वेश्चन को जाके हम देखते हैं। किया तो मैंने ये था, लेकिन पता नहीं इसने यही किया, शायद यही किया। let me just look. Yeah, use a PPC curve diagram to explain how a government in a mixed economy might allocate resources to consumption, and more resources to consumption and fewer resources to investment. अब मेरे बच्चों यहाँ पे I'll once again reiterate, please label carefully. प्राइस क्वांटिटी आप लोग लिख दोगे, एक मार्क भी नहीं आएगा 8 में से। प्लीज पीपीसी की क्या लेबल्स होती हैं? गुड एक्स गुड वाई एनी टू गुड्स। इस क्वेश्चन में मुझे बताएं, क्या उसने हमें ऑलरेडी कुछ बता नहीं दिया? तो हमें कौन सी गुड्स लिखनी है? शाबाश, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। इन्वेस्टमेंट मींस स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन मींस कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंडिंग। ठीक हो गया? तो बेसिकली आप अपनी एहतियात के लिए पीपीसी को डिफाइन कर दो। A curve that shows all possible combinations of two goods which an economy can produce using all its resources fully, efficiently with a given state of technology. उसके बाद मेरे बच्चों आप ड्रॉ करोगे, और ड्राइंग के ही आपको 3 मार्क्स नॉलेज के इंशाल्लाह मिल जाएंगे। वाई इज माई थिंगी नॉट वर्किंग? चार्ज तो किया हुआ था, चले दोबारा इसको मैं चार्ज पे लगाता हूँ। इन द मीन टाइम थोड़ा सा हम शायद अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लें। मेरा मूड तो यही था कि इसको ही करूं। लेट मी ट्राई के विद चार्जर अगर ये करने दे, मुझे नहीं करने दे रहा। चलें जी, कोई मसला नहीं, लेट्स वेट जस्ट अ लिटिल। ठीक है, तो 3 मार्क्स तो आपको डायग्राम पे मिलेंगे। वाई एक्सिस पे कर देना कैपिटल गुड्स, और एक्स एक्सिस पे कर देना कंज्यूमर गुड्स। जब ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाओगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, कैपिटल गुड्स कम बनेंगे। ठीक है, अब मुझे आप बताएंगे कि हमने इतनी ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाई और इतनी कैपिटल गुड्स हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ी। लेट मी ट्राई वंस अगेन, अगर ये मुझे ड्रॉ करने दे रहा है अभी। यस, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ स्टार्टेड। ये डायग्राम तो बन गया। बिल्कुल बताना है, बिल्कुल बताना है। तो इधर मैं कर रहा हूं बच्चे कैपिटल गुड्स। जी बोले बोले, आप क्या कह रही थी? बिल्कुल आएगा। हाँ, तो बेटे पहले कोई पॉइंट लो सेंटर में। लेट्स से ये बन रही थी 10 और ये बन रही थी 20। अब हमने कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाई। क्या लिखना है? रिसोर्सेज वर रीएलोकेटेड टुवर्ड्स कंज्यूमर गुड्स। बता दो, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। तो आप कहें एज सीन इन द डायग्राम, रिसोर्सेज वर रीएलोकेटेड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी
and we made more capital goods and sacrificed some more consumer goods and sacrificed some capital goods. ठीक हो गया? इसी की एक्सप्लेनेशन करके आपके एनालिसिस के 6 मार्क्स हो। जी मेरा बेटा, यस। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, ये बता सकते हो, लेकिन नॉन होमोजीनियस रिसोर्सेज का इससे ताल्लुक नहीं है। गवर्नमेंट का डिसीजन है कि हम ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। गवर्नमेंट प्रोबेबली वांट्स पीपल टू हैव ग्रेटर चॉइस, हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक हो गया? तो ये इसमें नॉन होमोजेनियस रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बतानी है कि इसके रिजल्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। लेकिन लिमिटेशन क्या है इस अप्रोच की, मुझे बताएं। लॉन्ग रन में क्या होगा? शॉर्ट रन में तो लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। यस, लिविंग स्टैंडर्ड फॉल होगा, पूरा पीपीसी लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। बिकॉज कैपिटल गुड्स ही हैं जो कंज्यूमर गुड्स भी बनाती हैं। तो लॉन्ग रन में पूरा पीपीसी लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। समझ आ गया मेरे बच्चों, या थोड़ा सा और बात करूं? शॉर्ट रन में कंज्यूमर्स का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उनकी चॉइस बढ़ेगी। यस। हाँ, जब मशीनरी नहीं होगी तो लॉन्ग रन में कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स दोनों कम बनेंगी, और दोनों के कम बनने के रिजल्ट में आपका पीपीसी पूरा लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही मुल्क की कम हो जाएगी, पोटेंशियल ग्रोथ गिर जाएगी। आप मुझे बताएं, मैंने बताया ऑलरेडी। गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड, चॉइस। हाँ, एचडीआई नहीं, उसमें कंज्यूमर गुड्स से मुराद ये है कि चॉइस ज्यादा है, वैरायटी ज्यादा है। उनको उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं कि हम मशीनें कम बना रहे हैं और ये ज्यादा बना रहे हैं। समझ आ गया आयशा? यस, हमेशा। जी मेरे बेटा। ना 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 ना, पीपीसी किस पे बेस कर रहा है? रिसोर्सेज पे, उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे। अब जब हम इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन से भी ज्यादा कम कर रहे हैं, सारे कंज्यूमर गुड्स सिर्फ जा रहे हैं, तो फ्यूचर में विल बी लेफ्ट विद लेस मशीनरी, लेस रोड्स, लेस इंफ्रास्ट्रक्चर। पीपीसी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। समझ आ रही है बात? जिसने पूछा। रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं हो रहे, हमने रीअलोकेट किया, चॉइस की कि कंज्यूमर्स को खुश करना है। ठीक है, इलेक्शन आ रहे थे, वट एवर, गवर्नमेंट ने चाहा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, लोगों को कंज्यूमर गुड्स देते हैं। उसके रिजल्ट में कैपिटल गुड्स से इन्वेस्टमेंट हटाई, विद टाइम वो डेप्रिशिएट होंगे, हमने इन्वेस्टमेंट कम कर दी थी, पूरा पीपीसी लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। वी विल हैव लेस स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, मशीनरी, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ आ रही है मेरे बेटा आपको? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। किसने? हाँ, सर कामरान ने वो, आई डोंट वांट टू से इट, बट शायद वहां पे मिस प्रिंट हो गया या जो भी है। देखो बेटे, हमेशा कैपिटल गुड्स से आप कंज्यूमर गुड्स पे जाओगे, पीपीसी लेफ्ट पे शिफ्ट होता है। ठीक है? जहां नहीं नहीं, एक दो ही है, एक दो ही है, मैंने पढ़े हुए हैं वो सारे। जहां पे आपको ऐसा लगता है, सेंड मी स्क्रीनशॉट। जैसे अब्दुल रहमान भेजते रहते हैं कि सर यहाँ पे लगता है उल्टा लिखा हुआ है। कॉपी पेस्ट भी होता है ना, कभी गलती हो जाती है। ठीक है? तो बुक्स में पब्लिशिंग एरर्स हो जाते हैं। राइट, आई एम श्योर ही डिडंट मेक अ मिस्टेक, बस वो हो गई, समहाउ वो एरर आ गया। तो आपने याद रखना है, जब भी इकोनॉमी पोटेंशियल ग्रोथ चाहे, पीपीसी को शिफ्ट करवाना चाहे, वक्ती तौर पे वो लिविंग स्टैंडर्ड कुर्बान करेगी, कंज्यूमर गुड्स से कैपिटल गुड्स पे जाएगी। लेकिन जब चाहें कि लोगों के अभी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हों, वो कंज्यूमर गुड्स पे आएंगे, फ्यूचर लिविंग स्टैंडर्ड्स गिरेंगे, पूरा पीपीसी लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। क्लियर ऑन दैट? या, तो इसीलिए लिविंग स्टैंडर्ड कम हो रहे हैं ना, मैं तो बोल रहा हूं। या, रॉन्ग डिसीजन, इट्स अ रॉन्ग डिसीजन।
दे दो, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? जरा क्वेश्चन देखो। नहीं, देखो वो क्या कह रहे हैं। यूज अ पीपीसी डायग्राम टू एक्सप्लेन हाउ अ गवर्नमेंट इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, अच्छा मिक्स्ड इकोनॉमी भी डिफाइन कर देंगे, माइट एलोकेट मोर रिसोर्सेज टू कंजम्पशन। ठीक है, ये आपने पीपीसी पे दिखाया कि हम ए से बी पॉइंट पे गए, हमने रीएलोकेट किए रिसोर्सेज टुवर्ड्स कंज्यूमर गुड्स। हाउ का आंसर हो गया, रीजन दे देते हैं, बिकॉज दे वांटेड कंज्यूमर्स टू हैव अ ग्रेटर चॉइस, मोर लिविंग स्टैंडर्ड्स और पॉपुलैरिटी बिफोर इलेक्शन। फ्यू रिसोर्सेज टू इन्वेस्टमेंट जब लगेंगे, उसकी लिमिटेशन वो पूछ रहा है, सोल्यूशन नहीं मांग रहा। लिमिटेशन क्या है कि भाई हमने कैपिटल गुड्स को प्रेफरेंस नहीं दी, फ्यूचर में हमारे पास मशीनरी का स्टॉक, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कम हो जाएगा, हमारा प्रोडक्टिव पोटेंशियल लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, पीपीसी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट इन फ्यूचर, will be left with less capital and less consumer goods, living standards will fall। समझ आ गया मेरा बेटा? सिर्फ लिमिटेशन उसको पूछी थी जी मेरा बेटा। हाँ वो ठीक है, they'll have to retrain workers to learn to make consumer goods, there'll be higher opportunity cost, ये बात थोड़ी सी कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि स्कोप ऑफ द क्वेश्चन में है। लेट्स जस्ट लुक, लेट्स सी व्हाट द मार्क्स स्कीम इज सेइंग एंड देन we'll redress the question। Question number 3A, for a fully accurate diagram that is correctly labeled consumer goods and capital goods। अच्छा बच्चे कभी कभी एक्सेस टच नहीं कराते, आई डोंट नो व्हाई। मुझे समझ नहीं आती कि वो क्यों ये बेसिक सी गलती कर जाते हैं। अब जरा अगर आप मेरा पीपीसी देखें, दोनों एक्सेस टच हो रही हैं। अगर आप यूं बनाएंगे, कोई मार्क नहीं। समझ आ रहे हैं? एक्सेस टच करवानी है, वाई एक्सेस भी, एक्स एक्सेस भी, ठीक है। तो बैक टू द मार्क स्कीम जी। तो 1 mark, diagram must show the movement from capital goods to consumer goods. Example, by means of an arrow, accompanied by an explanation that this is a movement along the curve rather than a shift due to reallocation। Acha, on of how government might allocate more resources to consumption and less to investment, by reducing tax on income, एक approach, by increasing government expenditure to provide subsidies for consumers, by reducing government support to businesses। अच्छा ये मैंने एंगल नहीं देखा था कि हाउ में वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि रीजन के साथ साथ कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हाउ था, बाय नहीं था, तो हम इसको चेंज करते हैं यहाँ पे। कैसे वो करेंगे जी? कंज्यूमर्स की इनकम पे टैक्स कम कर देंगे, उससे लोग ज्यादा डिमांड करेंगे कंज्यूमर गुड्स, फर्म्स ऑटोमेटिकली ज्यादा वो बनाएंगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सब्सिडीज से हटा दो, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, और सब्सिडीज आपने कंज्यूमर्स को दी थी, कंजम्पशन बढ़ेगी, अगेन वही चक्कर। बाय गवर्नमेंट रिड्यूसिंग सपोर्ट टू बिजनेसेस फॉर इन्वेस्टमेंट, वही बात। So plus 1 mark if shown on the diagram as either a movement along the curve or shift within the curve that is clearly explained। For a clear assessment of limitation of this policy, including an assessment of time lag, the possible response of business and consumers, etc। अच्छा, थोड़ी सी मार्क स्कीम वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज थिंकिंग, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन मार्क स्कीम ने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब उसकी वजह क्या होती है, हर साल जो बच्चे मेजॉरिटी आंसर लिख देते हैं ना, मार्क स्कीम उसके मुताबिक बनती है। सो बच्चों ने इसको इस तरह इंटरप्रेट किया। इकोनॉमिक थ्योरी में जैसे मैं बता रहा था वैसे था, लेकिन बच्चों ने इसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया। तो अब जरा थोड़ा सा वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। यूज अ पीपीसी डायग्राम टू एक्सप्लेन हाउ अ गवर्नमेंट इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी माइट एलोकेट मोर रिसोर्सेज टू कंजम्पशन एंड लेस रिसोर्सेज टू इन्वेस्टमेंट। हाउ वाली बात बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले करेक्ट डायग्राम 1 mark, मूवमेंट अलोंग द कर्व 1 mark, एक्सप्लेनेशन के भी मूवमेंट अलोंग द कर्व हुई है, शिफ्ट नहीं हुआ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वैसे 3rd mark, नॉलेज का कंफर्म। फिर कैसे गवर्नमेंट ये करवाएगी, टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस कम करके ताकि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़े, या अपना एक्सपेंडिचर कंज्यूमर को सब्सिडीज दे दे, उससे भी कंज्यूमर ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर बिजनेस इन्वेस्टमेंट, सब्सिडीज बिजनेसेस को हटा दे, उससे भी कंज्यूमर गुड्स की तरफ ज्यादा जाएंगे बिजनेसेस, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन एक्सपेंशन। अब कितना सक्सेसफुल होगा, लिमिटेशन क्या है, टाइम लगेगा। जी मेरा बेटा। हम्म।
किससे क्या बोल रहे हो, सॉरी? गवर्नमेंट किसको सपोर्ट खत्म कर रही है, बिजनेसेस को, आप ये कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। आई बेसिकली एम नॉट एग्रीइंग विद द मार्क्स स्कीम, बट बच्चों ने लिखा, उन्होंने इसी को एक्सेप्ट कर लिया। इकोनॉमिक स्टैंडर्ड थ्योरी अलग थी। हाँ, वो ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बेटी उसने कहा है ना, बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर बिजनेसेस फॉर इन्वेस्टमेंट, इससे सब्सिडी हटेगी तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगी। यू आर राइट, द किड इज राइट ऑन दैट। ठीक है, इसको आप इवैल्यूएशन में ले जाना। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है अप्रोच की? टाइम लैग्स हैं, पॉसिबल रीजन रिस्पॉन्स ऑफ बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स हैं, कि कितना कॉन्फिडेंस है उनको, वो स्पेंड भी करते हैं कि नहीं, ये सेव तो नहीं कर जाते एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम टैक्सेस। अलबत्ता फ्यूचर में लिविंग स्टैंडर्ड्स गिरेंगे, पीपीसी लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। चौथा मार्क वो यहां पे दे रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट का, पीपीसी का। जी मेरा बेटा। कर ले, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, आई पर्सनली एम नॉट हैप्पी विद द मार्क स्कीम, बट अगेन दिस इज द टूल्स वी हैव। तो अभी व्हाट वी नीड टू डू इज, मेरे ख्याल में जिस तरह हम आंसर कर रहे थे उसको ऑल्टरनेटिव अप्रोच कंसिडर करके वो 80% मार्क्स देगा। इनके मैनुअल्स में साफ साफ लिखा होता है कि 80% ऑल्टरनेटिव अप्रोच पे मार्क मिल सकते हैं। 3 तो हमारे कंफर्म है, हमने मेडिटेशन भी एक ठीक बताई, 4 तो हमारे कंफर्म है, फिर भी ये तो आ रहा है। जी मेरे बेटे, सॉरी। हाँ, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हाउ का वर्ड था, वहां मुझसे गलती हुई है, आई मस्ट एडमिट। लेकिन बाकी थोड़ा सा मार्क्स स्कीम इज अ बिट ऑफ। लेट्स नाउ गो टू द नेक्स्ट वन। असेस, अच्छा, आर यू डन विद दिस क्वेश्चन या और बात करना चाह रहे हो? बेटे एहतियातन बना दें, शिफ्ट भी कर दें, हाँ, पीपीसी लेफ्ट शिफ्ट कर दें, बिल्कुल। अब जी लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। असेस वेदर, इवैल्यूएशन 2 मार्क्स की होती है। ये जैसे उसने बताया यहाँ पे कि भाई कंज्यूमर बिजनेसेस के रिस्पॉन्सेज, टाइम लैग्स, लिमिटेशंस ऑफ द पॉलिसीज। या लेट्स मूव ऑन। मैंने की थी कि लिविंग स्टैंडर्ड्स की लिमिटेशन। आई थिंक सेंसिबल एग्जामिनर विल गिव इट एटलीस्ट 6 मार्क्स। लेट्स गो टू लास्ट क्वेश्चन। Assess whether producers are the only one to benefit when an economy decides to allocate additional resources to investment. अब जरा तसल्ली से, अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं, मुझे 2 पसंद आ रहा है। बहरहाल वी शुड हैव चोजन 2 आई गेस, बट कोई मसला नहीं। लेट्स गो टू सेक्शन पार्ट बी नाउ। Assess whether producers are the only ones to benefit when an economy decides to allocate additional resources to investment. सबसे पहले mark scheme, knowledge analysis 8, up to 4 why producers will benefit, and up to 4 why consumers, government, other parties will benefit. ये mark scheme होनी चाहिए। कोशिश करें जी, मुझे बताएं प्रोड्यूसर्स को क्या बेनिफिट होगा जब वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरा नहीं ख्याल, इन्वेस्टमेंट को कर दो, स्पेंडिंग मनी ऑन कैपिटल गुड्स। ठीक है, मोर इन्वेस्टमेंट मींस ग्रेटर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दे कैन पास ऑन लोअर प्राइसेस, दे कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। समझ रहे हो ना? इसी को स्ट्रेच करें। 4 मार्क्स लेने हैं। दोबारा बताएं बच्चों। इंटरनेशनल मार्केट में भी लोअर कॉस्ट हो गई है, एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, इंपोर्ट से लोग स्विच होके आ जाएंगे क्योंकि प्राइस कम है, होता है इन्वेस्टमेंट से। नई टेक्नोलॉजी थी तो क्वालिटी भी अच्छी हो गई। इस तरह का वैरायटी कंज्यूमर्स के लिए फायदा है। वो हम जाएंगे 4 मार्क्स के लिए। अब जी, कंज्यूमर्स को क्या फायदा है जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, उस पर बात करें। तो प्राइसेस भी बहुत अच्छे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, चॉइस बढ़ेगी।
और क्या होगा जी? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में इम्प्रूव। बिल्कुल सही है। क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा ज्यादा इन्वेस्टमेंट का? टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स रेवेन्यू आएंगे, उनका बजट सरप्लस में जाएगा, फिस्कल डिविडेंड लिख सकते हो। सो दैट इज मोर देन इनफ। इवैल्यूएशन में एज डिस्कस्ड अबव, not just producers, consumers, government and other parties will also benefit. कैसे? हाँ, 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 कह सकते हो। बिल्कुल कह सकते हो, लॉन्ग टर्म में they'll have to spend less on subsidies and they can reallocate those to merit. बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कोई वैसे ही एहतियातन कोई डिसएडवांटेजेस कर लेते हैं। जी, यस, एक्सप्लॉइट करते हैं। हुँ। ऑल्दो इट्स गोइंग आउट ऑफ द स्कोप, लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था एक आधा बेनिफिट के साथ ना प्रॉब्लम्स भी लिख लें, जस्ट इन केस एनालिसिस एक्सपेक्ट कर रहा हो, और कंज्यूमर्स को भी हायर प्राइस मिल सकती है मोनोपलीज की वजह से, ऑल दैट। तो लेट्स जस्ट क्विकली चेक एंड क्लोज द क्लास। ये हो गया जी, फॉर एन एक्सप्लेनेशन एनालिसिस ऑफ बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। देखो कॉस्ट उसने कहा सिर्फ बेनिफिट था, लेकिन रीड बिटवीन द लाइन, इसमें हमेशा वो एक आधा कॉस्ट पूछेगा। Producers will benefit as additional investment is likely to reduce cost of production, make them more price competitive, both domestically, internationally, increase their profits. Costs may include the fact that taxes may have to rise to fund additional investment. Much of the growth will be international, so businesses who focus on domestic market may not benefit. So, एक आधा cost. For an explanation, analysis of benefits and cost to consumers. In long run, this may lead to wider choice, lower prices, but in short term, taxes may increase to fund the additional investment. There may be fewer goods available क्योंकि हम capital goods पे जा रहे हैं. For an explanation, analysis of benefits and cost to government, increase in tax revenue in long term, but increase in expenditure in short run. Evaluation. जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, उसने उसने क्या बोला, उसने क्या बोला क्वेश्चन में? आर प्रोड्यूसर्स दी ओनली वंस टू बेनिफिट? याद रखना, इकोनॉमिक एजेंट सब सारे आ गए, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, सब इकोनॉमिक एजेंट्स। हाँ, I do see what you're saying, लेकिन government plays a major role in investment. I agree with you, I agree with you. लेकिन देखो मैंने भी बोला था गवर्नमेंट का आना चाहिए था लिंक, एज अ स्टेक होल्डर, एज एन इकोनॉमिक एजेंट। ठीक है, इस पे हम कल थोड़ी सी और बात कर लेंगे। अभी कोई और क्वेश्चन तो मुझे बताएं बिफोर आई स्टॉप द क्लास। इवैल्यूएशन यही है कि भाई सिर्फ कंज्यूमर्स बेनिफिट नहीं करेगा, सिर्फ कंज्यूमर सॉरी प्रोड्यूसर्स बेनिफिट नहीं करेगा, कंज्यूमर्स भी बेनिफिट करेंगे, गवर्नमेंट भी बेनिफिट करेगी, और सारी पार्टीज को कुछ ना कुछ कॉस्ट भी फेस करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? एज डिस्कस्ड अबव, शॉर्ट रन में गवर्नमेंट को स्पेंडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, लॉन्ग रन में टैक्स रेवेन्यू ज्यादा। कंज्यूमर्स के लिए शॉर्ट रन में चॉइसेस ज्यादा, लॉन्ग रन में प्रोड्यूस कंज्यूमर वेलफेयर सरप्लस सब ज्यादा। फर्म्स को वक्ती तौर पे ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को फॉर इन्वेस्टमेंट फंडिंग, लॉन्ग रन में उनकी कॉस्ट कम और उनको फायदा। तो ऑल द पार्टीज विल बेनिफिट। एंड सॉरी, आज नहीं, आज तो हमारे पास सब खत्म हो गया टाइम। कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे इंशाल्लाह।